आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर 2 का टिंकलिंग बेल्स के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। Do you know a baby goat is called a kid, just like a young child. So when someone says, "Look at that kid playing in the field," they might not be talking about a human. They could mean a baby goat. क्या आपको पता है एक बकरी के बच्चे को भी हम किड कहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस जो मानव के बच्चे होते हैं उनको भी किड कहते हैं। तो फिर अगर आपको किसी ने कहा कि देखो वो बच्चा मैदान में खेल रहा है, तो वो हो सकता है मानव के बच्चे के बारे में बात ना करें, हो सकता है वो बकरी के बच्चे के बारे में बात कर रहे हों। Let us think. Answer the following. Why was Chinna upset? Chinna was upset because he lost his money which Dadaji gave him yesterday. How did Kamla help Chinna feel better? Kamla consoled him by hugging, wiping his tears and saying sorry. She also offered him the money to buy the bells. What did the fruit seller do by mistake? The fruit seller gave extra 10 rupees note to Chinna by mistake while giving back the change. How did Chinna manage to buy the bells from Chacha in the end? After getting honesty reward from the fruit seller, his mother took him to Chacha's shop and bought the bells. Write T for the true or F for false. Chinna wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. क्या चिन्ना अपना वो बेल्स जो था वो अपने साइकिल में लगाना चाहता था? बिल्कुल नहीं, false. Chinna's mother Kamla comforted him when he came home feeling sad. चिन्ना की मम्मी कमला जो थी उन्होंने प्रोत्साहन दिया जब वो घर आया दुखी होकर। हाँ, सही बात है, ट्रू। द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 20 रुपीज एक्स्ट्रा एज चेंज। जो फल वाले अंकल थे उन्होंने चिन्ना को 20 रुपये एक्स्ट्रा दिए जब वो चेंज दे रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। उन्होंने 10 रुपये की नोट दी थी एक्स्ट्रा, तो ये फॉल्स है। चिन्ना डिसाइडेड टू कीप द एक्स्ट्रा मनी एंड बॉट चॉकलेट्स विथ इट। हाँ, जब चिन्ना को रुपए मिले थे तो उसने अपनी मम्मी से पूछा था कि क्या मैं इससे बेल्स और चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ, तो ये सही है, ट्रू। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। जो फल वाले अंकल थे वो बहुत दुखी हुए जब चिन्ना ने उनको गलती से उन्होंने रुपए दे दिए थे चिन्ना को। जब चिन्ना ने उन्हें वापस किया तो वो दुखी हो गए। नहीं, वो तो बहुत खुश हुए, उन्होंने उसे रिवॉर्ड भी दिया था, तो ये फॉल्स है बच्चों। थिंक एंड डिस्कस. Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? Chinna was feeling ashamed when his mother said that it is stealing. When he remembered how sad he felt when he lost his own money, he didn't want the fruit seller to feel the same way, so he chose to do the right thing and return the extra money. Think of a time when you found something that didn't belong to you. What did you do? How did it make you feel? I found a money bag in the school bus. I gave it to the driver so he could return it to the right student. I felt proud and happy, to be honest. Let us learn. Find the given words. Calm, honest, love, respect, courage, loyal, truth, fair, kind, peace. देखिए बच्चों, मैंने हाईलाइट कर दिया है। काम, देखिए CALM, काम। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट हमारा यहाँ है। लव, देखिए लव यहाँ है। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट कहाँ है? यहाँ देखिए RESPECT।
करेज, COURAGE, करेज यहाँ पर है। लॉयल, LOYAL, लव का L भी आ जाता है ये लॉयल के अंदर में। ट्रुथ, यहाँ पर है ट्रुथ। फेयर, ये देखिए यहाँ है फेयर। काइंड का आई भी इसके अंदर आ जा रहा है। काइंड, देखिए काइंड यहाँ पर। पीस, पीस। Read the following. Chinna, Charu and Jasmine are friends. They study in grade 4. चिन्ना, चारू और जैस्मिन नाम के जो हैं वो सारे फ्रेंड्स हैं। चिन्ना लड़का है, चारू एंड जैस्मिन लड़कियां हैं। वो तीनों फ्रेंड्स हैं और वो लोग क्लास 4 में पढ़ते हैं। चिन्ना इज़ टॉल, चिन्ना लंबा है। चारू इज़ टॉलर देन चिन्ना, चारू चिन्ना से भी लंबी है। जैस्मिन इज़ द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, जैस्मिन चिन्ना और चारू दोनों से ही लंबी है, वो सबसे लंबी है इन लोगों को ग्रुप में। We use different forms of adjectives to compare the qualities of people or things. When we compare the qualities of two people or objects, we add er to the adjective. We always use than while comparing to two people or objects. Example, Aman is shorter than Jia. When the comparison is made in a whole group or collection, we add est to the adjective. Example, February is the shortest month of the year. Fill in the blanks using the correct comparison markers, ER और EST. एक हमारे लिए किया हुआ है, I am taller than my brother. मैं अपने भाई से बड़ा हूँ। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है साल का। एन एंट इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट, एक चींटी बहुत छोटी होती है हाथी से। माई सिस्टर इज स्मार्टर देन मी, मेरी बहन मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, चालाक है, बुद्धिमान है। जय वॉज द फास्टेस्ट पर्सन इन द रेस, जय सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का था रेस में। Circle the word that means the opposite of the highlighted word in each sentence. Chacha showed him some beautiful tinkling bells. Attractive, ugly, broken. Beautiful का मतलब है attractive, यहाँ opposite है ugly. The fruit seller was so happy that he gave Chinna 10 rupees as a reward. Reward का मतलब है prize, तो यहाँ उसका उल्टा होगा पनिशमेंट। आई विल गिव यू मनी टू बाई द बेल्स, बाई का मतलब यहाँ परचेज है, यहाँ खरीदना हुआ, तो सेल अपोजिट है बेचना। कैन आई बाई चॉकलेट्स विद द मनी, विस्पर्ड चिन्ना, विस्पर्ड मतलब बहुत धीरे से बात करना, कान में बात करना, तो इसका अपोजिट होगा शाउटेड, चिल्लाना। लेट अस लिसन. Your teacher will read out the story, The Tinkling Bells, once again to you. Now read the following sentences and number them in the sequence of the story. तो मैंने देखिए बच्चों यहाँ मैंने सीक्वेंस कर दिया है। पहले आपका 2 आता है, फिर 4, 3, 5, 6, 1। मैंने इसको सीक्वेंस में लगा दिए हैं, आप प्लीज़ आंसर्स कर लीजिएगा। मैं थोड़ा इसको यहाँ रोक के रख दे रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्पीक. व्हाट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशंस? You borrowed your friend's favorite pen. After using it, you accidentally broke it. What would you do? देखिए बच्चों, ये आपको खुद से करना है। आप मुझे ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के आंसर्स का। आप लोगों की क्या एक्सपीरियंस हुई, आपने कैसा फील किया, आपके साथ जो ऐसा हुआ, आप मुझे सारे आंसर्स इसके करके मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सेंड करिएगा। ओके, नंबर 2 क्या है?
हाँ, नंबर 1 मैं समझा दूँ. यू बोरोड योर फ्रेंड्स फेवरेट पेन, आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट, व्हाट वुड यू डू. आपने अपने एक दोस्त से पेन उधार मांगा. मे बी आप क्लास में गए, बॉक्स भूल गए, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज़ मुझे एक पेन दो ना, मैं लिखूंगा. आफ्टर यूजिंग इट यू एक्सीडेंटली ब्रोक इट. आपने लिख लिया, पूरे पीरियड्स ख़त्म हो गए. स्कूल जब अब छुट्टी होने वाली है तब आपसे गलती से उसका पेन टूट गया. फिर आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू. नंबर 2, ड्यूरिंग अ मैथ क्विज योर फ्रेंड ask you to show them your answers because they didn't study. If you don't help, your friends might get upset with you. What would you do? एक मैथ्स की क्विज चल रही है, वहाँ आपके दोस्तों ने पढ़ाई नहीं किया है, वो मे बी किसी और चीज़ में बिजी थे या उनकी तबीयत खराब थी, उन्होंने पढ़ाई नहीं किया और वो लोग बोल रहे हैं कि तुम मुझे आंसर्स दिखाओ. इफ़ यू डोंट हेल्प योर फ्रेंड्स माइट गेट अपसेट विथ यू. अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे. आप क्या करेंगे फिर? व्हाट वुड यू डू. यू सी अ क्लासमेट टेकिंग अ नोटबुक फ्रॉम द टीचर्स डेस्क विदाउट परमिशन. आप एक अपने क्लासमेट को, जो आपके क्लास में पढ़ता है, कि कोई भी लड़का या लड़की, आपने देखा कि वो टीचर्स के डेस्क से जाके वो बिना परमिशन लिए टीचर से वो नोटबुक उठा लेता है या उठा लेती है. द क्लासमेट टेल्स यू नॉट टू टेल एनीवन. फिर उसने आपको बताया कि आप किसी को नहीं बताओगे. व्हाट वुड यू डू. फिर आप क्या करोगे. नंबर 4, you bring your favorite snack to school but you find that your classmate has not brought anything to eat. आप अपने टिफ़िन में अपना फेवरेट स्नैक्स लेकर गए हो, पर आप देख रहे हो कि आपका एक क्लासमेट जो है वो कुछ भी नहीं लेकर आया है. मे बी वो अपना टिफ़िन भूल गया है. यू रियली वॉन्ट टू एन्जॉय द स्नैक अलोन. आप अकेले ही उसे खाना चाहते हो, किसी से शेयर नहीं करना चाहते हो, आपकी बहुत फेवरेट है. व्हाट वुड यू डू. Let us write frame sentences using the following words from the story. Smiling. Chinna was smiling when he tied the bells around Tara's neck. Mistake. The fruit seller made a mistake and gave extra money to Chinna. Honest. Chinna was honest and returned the extra money to the fruit seller. Praise. The fruit seller gave 10 rupees to Chinna for his honesty. Careful. Kamla told Chinna to be careful with the money in future. Draw 2 national symbols. Example, national flag, national bird, and write a few sentences about each. देखिए यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आप कोई भी 2 नेशनल सिंबल्स बना सकते हैं और उसके बारे में बताना है आपको. तो मैंने यहाँ पे नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लावर का पिक्चर दे दिया है बच्चों. यहाँ पॉसिबल नहीं था बनाना, इसीलिए मैंने इमेज को दे दिया है. और मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है. मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं नेशनल फ्लैग और नेशनल फ्लावर के बारे में. National flag. National flag of India, also known as Tiranga, is a horizontal tricolor flag. जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे तिरंगा भी कहते हैं और वो 3 रंगों में आता है. It consists of saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. ऊपर में केसरी रंग होता है, बीच में वाइट होती है, सफ़ेद रंग होती है और नीचे में हरा रंग का होता है. At the center of the white band is a navy blue wheel which is known as अशोक चक्र. देखिएगा बच्चों, झंडा में वो ब्लू कलर का एक पहिया के जैसा रहता है चक्र, उसे अशोक चक्र कहते हैं. ये हमारे लॉ, ड्यूटी एंड प्रोग्रेस के बारे में बताता है. इट सिग्निफाइज द लॉ, ड्यूटी एंड प्रोग्रेस. नेशनल फ्लावर. द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज द लोटस. हमारा नेशनल फ्लावर कमल का फूल है. द लोटस होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन कल्चर एंड माइथोलॉजी. ये कमल का फूल हमारे कल्चर में, हमारे भारत के सभ्यता में बहुत ही महत्व रखता है.
ये हमारे माइथोलॉजी का मतलब है, जो पूजा पाठ जो धर्म है उसमें भी माने जाते हैं। रिप्रेजेंटिंग प्योरिटी, एनलाइटमेंट एंड ब्यूटी। ये प्योरिटी मतलब स्वच्छता और सुंदरता को भी दर्शाता है। द लोटस फ्लोरिशेस इन फ्रेश वाटर। वो लोटस एकदम साफ सुथरे पानी में उगता है। द सीड्स, लीफ, रूट्स एंड द लीफ स्टॉक ऑफ द लोटस आर एडिबल। जो कमल का फूल होता है उसके बीज, पत्ते, जड़ और जो स्टेम होता है, लीफ स्टॉक, देखिएगा वो जॉइंट रहता है एक पत्तों से, और जड़ से जो एक टहनी सी रहती है उसे भी खा सकते हैं हम, और हमारे भारत में उसे सब्जी बनाकर भी खाते हैं। फन विथ मैच स्टिक्स, सॉरी, और एक ये है। लेट अस डू क्रिएट योर ओन बेल क्राफ्ट सिमिलर टू द बेल्स चिन्ना वांटेड फॉर हिज पेट गोट। यहाँ पे मटेरियल्स जो लगेंगे वो दिए हुए हैं। ये आपको यह प्रोजेक्ट अपने स्कूल में किसी के निगरानी में करने होंगे, या आप टीचर के निगरानी में करिए, या आप अपने घर में मम्मी पापा के निगरानी में करिए। तो ये आपको किसी के साथ बैठ के करना है बच्चों। फन विथ मैच ट्रिक्स एक्टिविटी, फिक्स द इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव, मूव वन मैच स्टिक टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। वन पजल हैज बीन सॉल्व फॉर यू। देखिए यहाँ पर 9 - 2 दिया हुआ है इक्वल टू 8। सॉल्यूशन क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए 6 से ये मैच स्टिक को निकाल के यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, इसको 8 बना दिया गया है। 8 - 2 इक्वल टू 6। ये हम लोगों को सॉल्व करनी है। देखिए मैंने सॉल्व कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ देखिए 9 + 9 इक्वल टू 9, यहाँ पर ये दिया हुआ है। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मूविंग वन मैच स्टिक। यहाँ 9 + 9 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, देखिए 9 प्लस मैंने यहाँ का ये जो स्टिक है उसको हटा के इसको 0 कर दिया है। 9 + 0 इक्वल टू 9। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं बता दूंगी, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 + 9 इक्वल टू 9। 9 + 9 जो है, इसको ये जो बीच में जो मैच स्टिक है उसको मैंने साइड यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिससे ये 0 बन गया। 9 + 0 इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। वी हैव रीड अबाउट चिन्ना's लव फॉर टिंकलिंग बेल्स इन द स्टोरी। हमने देखा कि चिन्ना को वो बजते हुए घंटी कितने पसंद है वो स्टोरी में, कहानी में। कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स फाउंड इन इंडिया। अब हमें क्या करना है, जो अलग अलग टाइप्स के अलग अलग तरह के बेल्स होते हैं हमारे देश में, उसे इकट्ठा करना है, उसे बनाना है, और फिर पिक्चर बनाना है और उसको दिखाना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बनाया है कुछ, देखिए मैंने चाइम बेल बनाया, वर्शिपिंग बेल बनाया है, चर्च बेल बनाया, बाइसाइकिल बेल बनाया है। ये गोल होने चाहिए, सॉरी ये मैंने पेन से किया है, ये गोल नहीं हो पाया। मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। आप लोग बहुत अच्छे से बनाइएगा। आई नो आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छा बनाएंगे। चलिए बेल्स के बारे में बात करते हैं। बेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू काउ बेल्स, हैंड बेल्स, टी बेल्स, चाइम बेल्स, चर्च बेल्स, स्लाई और जिंगल बेल्स। क्रिसमस में आपने सुना है जिंगल बेल्स, जिंगल बेल्स, जिंगल ऑल द वे, वही बेल। क्राफ्ट बेल्स, फार्म बेल्स, गार्डन बेल्स, नॉकर बेल्स, विंड बेल्स, कॉल बेल्स एंड टर्की बेल्स। कॉल बेल्स हमारे जो डोर पे लगे रहते हैं, कोई आते हैं, कोई हमारे घर में गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं तो बेल बजाते हैं,
वही वही है हमारा नॉक, सॉरी, कॉलिंग बेल। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ ड्राइंग कर दिया है, आप लोग देख लीजिए बच्चों। थैंक यू। आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है।